about some science stuff. Professor Dave explains. Doo doo. अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, फिर से आ गई बायोलॉजी। कल का लेसन पढ़ा था आयशा? जी रीडिंग की थी टॉपिक की, फोटोसिंथेसिस की। कुछ समझ आया उसका? फोटोसिस्टम प्लांट्स में पहले फोटोसिस्टम 2 अरेंज होता है या 1? बताएं। We are going to start the next topic, which is dark reactions of photosynthesis. We have already studied that photosynthesis, it is a main process in which carbon dioxide and water, they react in the presence of sunlight and chlorophyll to produce oxygen and sugar, which is the food for the plants. All right, now there are two main phases of photosynthesis, जिसमें हमने पढ़ा light reactions and dark reactions. Light reactions के हमने 2 types पढ़ी थी, cyclic phosphorylation का process इसमें क्या, जिसके अंदर हम ATP की generation कर रहे हैं. The process in which solar energy is converted solar energy is converted into chemical energy of ATP is known as phosphorylation. The process of phosphorylation is also known as chemiosmosis. फिर हमने पढ़ा कि light reactions of photosynthesis, they are also known as photophosphorylation, which are of 2 types: cyclic photophosphorylation and non-cyclic photophosphorylation. यहाँ पे if you guys can see, this is photosystem 2 and this is photosystem 1. All right, P680 is photosystem 2. It has primary electron acceptor and energy gradient is increasing upward. Electron is then passed out to electron transport chain. Those purple molecules, they are representing electron transport chain with specific electron carriers. First carrier, second carrier, third carrier, then photosystem 1, P700. Then photosystem 1 also has electron carriers or electron transport chain, which are 2. And then there is ATP synthase present. This the use of this structure in the plasma membrane of thylakoids of chloroplast, you can see here, is to produce ATP by joining ADP and phosphate to make ATP. And meanwhile, we also produce NADPH as energy source by using photosystem 1. Now, when sunlight falls on the photosystems, light excites the electron. Electron are passed on to plastoquinone, then cytochrome B/C complex, then plastocyanine, then passed out to photosystem 1. Photosystem का भी electron acceptor है. Then ferredoxin के बाद NADP reductase enzyme जो है NADPH की synthesis करेगा and then ATP molecule बनेगा. That is a summary of our previous lecture which we have studied. कि light reaction of photosynthesis में क्या क्या बनता है. एक तो use होता है water, and we are producing what? We are producing ATP and NADPH. NADPH and ATP, these are the products of light reaction.
which are the products of light reaction. Now we are going to study dark reactions of photosynthesis, in which the products of light reaction ATP and NADPH are used because they are direct reaction. They are not taking place in sunlight, so they are using energy from these chemicals instead from sunlight. All right. Now we have studied, this is the photosystem. Let's recall the topic, in which there is a chlorophyll A molecule, which is the main reaction center, having primary electron acceptor, and other accessory pigments जो है light को transfer कर रहे हैं all of the pigments towards chlorophyll A, ताकि photosynthesis का process हो, ताकि electron excite हो और पूरा process हो, और end product हमारे पास क्या होगा, ATP and NADPH, जो भी हमने पढ़ा. ये इसी तरह लाइट एनर्जी फॉलो, ये पूरा प्रोसेस आप लोगों ने याद रखना कि फोटोसिस्टम 2 की जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, वो उसके अंदर हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं. ओके. इसके बाद फोटोसिस्टम 1 जो है P700, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. दीज आर फोटोसिस्टम 2 की क्या वैल्यू है, P680, फोटोसिस्टम 1 P700. उसका जो है 2 इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं. देन एटीपी सिंथेज, ये मॉलिक्यूल जो आपको पिंक कलर का नजर आ रहा है, ये सिंथेसिस कर रहा है एटीपी की. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एटीपी सिंथेज. दिस इज द सेम कांसेप्ट ऑफ एंटीना कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. And this is photophosphorylation, in which we are making ATP and NADPH. The purpose behind I am focusing on the products of ATP and NADPH is that अब जो हम प्रोसेस पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन का, उसके अंदर हम ATP और NADPH यूज करेंगे जो कि लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस हुए थे. These are the light reactions, ठीक है, using sunlight directly. Now there is a quick video in which we are going to understand and review the topic of light reactions. I have also given you the recap, but let's look at this video and note down the important concept if you feel like you are going to forget them. Okay. Professor Dave here. Let's learn about photosynthesis. He knows a lot about the science stuff. Professor Dave explains. We talked about how cellular respiration transforms the food we eat into ATP. But what do plants do? They don't really eat in the normal sense of the word, apart from Venus flytraps. As it turns out, plants are getting their energy directly from the source, the sun. Plants use sunlight as well as water and carbon dioxide, which are plentiful in our earthly surroundings, to produce their own nourishment through a cellular process called photosynthesis. This word makes sense because photo comes from the Greek word for light, and synthesis means to build. So plants use light and small molecules to build bigger molecules that they can then metabolize to produce energy. Other organisms then eat the plants, and other organisms eat those organisms, so plants really are the foundation of the entire food chain. Let's learn about how photosynthesis works. Photosynthesis consists of 2 stages. There are the so-called light reactions, in which solar energy is converted into chemical energy, and then there's the Calvin cycle, which uses that chemical energy to build G3P, the precursor to glucose and other molecules. Both of these stages occur inside one of the organelles found in plant cells, which are called chloroplasts, and there are around 30 to 40 of them per cell. A chloroplast has 2 membranes that surround a fluid called stroma, within which sacs called thylakoids are suspended. These sacs are often stacked in columns called grana, and in the membrane of these thylakoids sits a special pigment molecule called chlorophyll. Chlorophyll can take either an A or a B form, differing only in one functional group inside the porphyrin ring, either a methyl or aldehyde group. The porphyrin ring is what gives this molecule the capacity to absorb sunlight in a unique way. If chlorophyll absorbs a photon of a particular energy, one of its electrons jumps up to an excited state. These chlorophyll molecules sit inside of a photosystem with many other chlorophylls, and this excitation can get passed around from molecule to molecule, with one electron relaxing back to the ground state, emitting another photon that will excite an electron in another molecule, and so forth, like a pinball machine. Eventually, a photon may strike the reaction center complex, which also contains 2 molecules of chlorophyll.
When this happens, the high energy excited electron, rather than relaxing back down to the ground state, will instead be transferred to another molecule called the primary electron acceptor, after which an enzyme supplies the missing electron to the oxidized chlorophyll via a water molecule to get it back to normal, which is how oxygen molecules are produced. This is the first step of the light reactions. These are a series of redox reactions that occur first in photosystem 2 and then in photosystem 1. If they seem like they are named backwards, it's because they were named in the order that they were discovered. In photosystem 2, electrons flow beginning with the primary electron acceptor through a series of compounds that are embedded in the thylakoid membrane, sort of like the electron transport chain from cellular respiration. ATP will be a byproduct of this process due to a proton gradient and ATP synthase, also just like in cellular respiration. Now electrons will move through photosystem 1, another electron transport chain. But instead of producing ATP, photosystem 1 will result in the conversion of nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, or NADP+, into NADPH. So the light reactions in the thylakoid, which are summarized by the following equations, require sunlight and water among the reactants and generate oxygen, ATP, and NADPH as products. ATP and NADPH are then used in the Calvin cycle, which occurs in the stroma. This is where all the synthesis occurs. Unlike the citric acid cycle, which is catabolic, the Calvin cycle is anabolic, building organic molecules from smaller components, requiring energy to do so. This happens in 3 phases. Phase 1 is carbon fixation, which is catalyzed by an enzyme called Rubisco. Rubisco captures... Okay, I hope you have recalled all the topic of light reactions. सब लोगों को समझ आई है? लाइट रिएक्शंस जो हमने कल पढ़ा था उसकी एक क्विक समरी थी, ये मैंने इसको आपको अभी थोड़ा टाइम इस पे लगाया है बिकॉज फॉर द डार्क रिएक्शंस वी नीड व्हाट इज हैपनिंग इन लाइट रिएक्शंस एज वेल. Is the concept clear now, Aisha, Lella, Kurutulain and Samreen? So now coming towards the second part of photosynthesis, जिसके अंदर इसका नेम है dark reactions. Dark reactions जैसे कि इसके नेम से हमें पता लग रहा है कि they are taking place in dark, not using sunlight directly. These reactions do not need sunlight and occur in its absence. Dark reactions, they use energy molecules from that were generated during the light reactions. And what were those energy molecules? Can you name those molecules, Samreen? What were those energy molecules that were produced in light reactions? You can unmute yourself. Anyone else want to tell? Oh, yes, Samreen. कौन से energy molecules से थे जो हमने light reaction में produce किए थे अभी? Speak up. आयशा, आप बताना चाहेंगी? Lella, Kurutulain. कि what are those molecules जो अभी हमने as a product बनाए हैं light reaction में, उनका name क्या है? Nobody knows. If you have microphone problem तो आप chat box में answer कर सकते हैं. आयशा, आप बता दें. Hurry up, first year. नहीं समझ आ रहा. क्या समझ नहीं आ रहा? Question? मैंने पूछे लाइट रिएक्शंस के जो प्रोडक्ट थे उनका क्या नेम है. अभी जो हमने लाइट रिएक्शन का भी रिव्यू लिया पूरा, जो हमने कल पढ़ा था, प्रोडक्ट क्या बना था? यस समरीन, यू गॉट राइट आंसर. द प्रोडक्ट हमारे पास क्या था? ATP एंड NADPH. ATP के बारे में हमें तो ये भी पता है ना कि इट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल ही कहते ही इसलिए कि उसके अंदर ATP जनरेट होती है. सो द डार्क रिएक्शंस और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस. लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस वो थे जो लाइट पे डिपेंड करते थे, सनलाइट पे डिपेंड करते थे. जो डार्क रिएक्शंस है दे आर
independent of light, and वो करते क्या है, basically reduce करते हैं carbon dioxide को to form glucose. If you remember that concept that we have already studied in the oxidation reduction topic, कि रिडक्शन प्रोसेस में होता क्या है कि हम ऑक्सीजन हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर रहे होते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 में हाइड्रोजन एडेड नहीं है. व्हेन वी फॉर्म ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड वी विल ऐड plenty of hydrogen, H12 hydrogen molecules. That is the reason why we are calling it as carbon dioxide is reduced. These reactions take place in the stroma. आप लोगों को अगर याद हो, अभी हमने लाइट रिएक्शन जो पढ़े हैं वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकॉइड जो थे उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर हो रहे थे लाइट रिएक्शन, जबकि डार्क रिएक्शन है वो कहाँ होते हैं, स्ट्रोमा के अंदर, जो फ्लूइड है इन द क्लोरोप्लास्ट. ऑलराइट, now light reactions convert solar energy to chemical energy and produce ATP and NADPH. ये बात हमें लग गई पता कि water use हुआ, light energy use हुई, oxygen बन गई और ATP and NADPH produce हो गया. That colorful part. Now what is dark reaction or Calvin cycle? It is the same word. Calvin cycle के अंदर चीज जो product है वो क्या है, sugar, C6H12O6 in the form of glucose. ATP generated by the light reaction provides energy for sugar synthesis. वो जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी फ्रॉम लाइट रिएक्शन वही यूज होगी, नॉट डायरेक्टली सनलाइट यूज नहीं होगी. एटीपी यूज होगी ताकि हम क्या प्रोड्यूस कर सके, शुगर, और एनएडीपीएच जो है वो हमें प्रोवाइड करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स ताकि हम कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर सके. ठीक है, दैट इज द क्विक ओवरव्यू. अब हम देख रहे हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया आपको नजर आ रहा है, क्लोरोप्लास्ट है. क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थाइलाकॉइड्स हैं, आपको नजर आ रहे होंगे थाइलाकॉइड्स और ग्रेना, इनके ऊपर हो रहे हैं लाइट रिएक्शन. प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ऑक्सीजन, एटीपी एंड एनएडीपीएच. जबकि जो डार्क रिएक्शन है, आपको थोड़ा डार्क शेड नजर आ रही है, ये स्ट्रोमा के अंदर होते हैं. जो लिक्विड फ्लूइड है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, स्ट्रोमा में टेक प्लेस होता है. कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है और क्या बनता है इससे, शुगर. यहाँ आपको नजर भी आ रहा होगा होल प्रोसेस. लाइट रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बन रहे हैं यही जा रहे हैं, कहाँ पे एंटर हो रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ एरोड नजर आ रहा है कि कार्बन साइकिल में एंटर हो रहे हैं. एटीपी एंटर होगा और फॉस्फेट इसका रिमूव करके एडीपी में वापस कन्वर्ट हो जाएगा और एनएडीपीएच अपना हाइड्रोजन दे देगा और एनएडीपी प्लस वापस आ जाएगा ताकि दोबारा से लाइट रिएक्शन कैरी आउट हो सके. सो दीज आर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस व्हिच आर डिपेंडिंग अपॉन लाइट, एंड दिस इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन व्हिच इज नॉट डिपेंडिंग ऑन लाइट. नाउ केल्विन साइकिल इज बेसिकली 3 स्टेप प्रोसेस, जिसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, किस तरह ये डिफरेंट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनते हैं इसके, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, बिसफॉस्फोग्लिसरेट, और एंड में एक ग्लूकोज बनता है और वापस एक साइकिल की फॉर्म में रीजनरेट हो जाते हैं मॉलिक्यूल. दिस इज अ सीरीज ऑफ केल्विन साइकिल. यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि 3 लिखा हुआ है कि हम एक कार्बन डाइऑक्साइड एक टाइम पे यूज नहीं करते, हम 3 कार्बन डाइऑक्साइड एक टाइम पे यूज करें. इसको भी अभी हम स्टडी करेंगे. Now there is a term in your textbook written C4 and C3 pathway. Dark reaction जो होते हैं ये complicated metabolic pathway है. इसको हम इसलिए इसको कहते हैं कि कैल्विन साइकिल है, डिस्कवर किया था मेल्विन कैल्विन ने, और इसको हम C3 pathway कहते हैं. कुछ प्लांट्स जो है वो C3 pathway के साथ C4 pathway भी कैरी आउट करते हैं. तो वो C4 pathway, C3 pathway, they are 2 different pathways. ना जो कुछ प्लांट होते हैं, वो वाले प्लांट दे in which only Calvin cycle occurs are known as C3 plants. All right. Calvin cycle uses the energy from short-lived electronically excited carriers to convert carbon dioxide and water into organic compound that can be used by organisms. इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड कैरियर्स वो हैं जो भी कार्बन साइकिल के प्रोसेस में सेंटर में जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनते हैं ताकि हम क्या बना सकें, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकें विच इज शुगर, और फिर ऑर्गेनिज्म उस शुगर को यूज करें. कार्बन साइकिल रेफर करते हैं हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस को फोटोसिंथेसिस में, जो कि बेसिकली 3 मेन स्टेप्स में टेक प्लेस होता है. दीज 3 स्टेप्स आर कार्बन फिक्सेशन, स्टेप नंबर 1 और फेज नंबर 1, रिडक्शन फेज 2, regeneration of carbon dioxide acceptor which is RUBP is phase 3 or step 3. This is the exact diagram which is given in your book, so pay attention to this diagram first. अब इसके 3 phases हैं कार्बन साइकिल के, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज एंड थर्ड फेज. वी आर गोइंग टू लुक एट ईच फेज स्टेप वाइज. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल आया. हम सपोज करते हैं कि हमारे पास 3 मॉलिक्यूल हैं कार्बन डाइऑक्साइड के. लेट्स मेक इट सिंपल के अभी हम करते हैं, अज्यूम करें कि एक कार्बन डाइऑक्साइड है और एक उसको हम कैरी आउट करते हैं एंड देन हम वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर प्रोसेस. अब कार्बन डाइऑक्साइड जो एनवायरनमेंट से प्लांट को मिली थी वो एड अप होती है RUBP, एक राइबोलूस बाइफॉस्फेट, एक 5 कार्बन कंपाउंड है. यू कैन काउंट 1 2 3 4 5 कार्बन कंपाउंड है जो कि
एंजाइम है रिबिस्को, राइबोलूस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम है। ये क्या करता है कि इस 5 कार्बन कंपाउंड को अटैच कर देता है इस कार्बन से, 5 और 1 6, तो ये एक 6 कार्बन कंपाउंड बना देता है। दैट 6 कार्बन कंपाउंड इज नाउ इज वेरी अनस्टेबल। उसको हम 2 में डिवाइड कर देते हैं, मतलब 2 3 3 कार्बन कंपाउंड बन जाते हैं हमारे पास। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, जिसके अंदर 5 कार्बन कंपाउंड 1 कार्बन कंपाउंड से मिलकर 6 कार्बन कंपाउंड बनाते हैं, और वो 6 कार्बन कंपाउंड जो है हम उसको ब्रेक डाउन करके 2 3 3 कार्बन कंपाउंड बना देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव 6 कैंडीज, यू कैन इक्वली डिवाइड these 6 कैंडीज into 3. You can keep 3 with yourself and give other 3 to your friend. Same is the case with that product, जिसमें हम 6 कार्बन कंपाउंड बनाते हैं, उसको 2 3 कार्बन कंपाउंड में डिवाइड कर देते हैं। सेकेंड फेज में हम क्या करते हैं कि उस 3 कार्बन कंपाउंड पे जिसके एक साइड पे फॉस्फेट अटैच है, उसके दोनों साइड पे हम फॉस्फेट अटैच करके उसको कन्वर्ट कर देते हैं ग्लिसरेट को ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट के अंदर, और उसमें 6 कार्बन कंपाउंड 3 कार्बन कंपाउंड बन जाता है। उस 3 कार्बन कंपाउंड से एक फॉस्फेट अलग कर लेते हैं, बाकी एक फॉस्फेट अलग कर लेंगे। उसके बाद जो बाकी 5 कार्बन कंपाउंड है उसको उससे हम ये RuBP रीजनरेट कर लेंगे, ताकि दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन आए और वो पूरा प्रोसेस हो। लेट्स लुक एट द डायग्राम फ्रॉम योर बुक इन द फर्स्ट फेज, विच इज कार्बन फिक्सेशन। कार्बन को हमने फिक्स करना है। कार्बन को फिक्स कैसे करना है कि यहाँ पे आप देखिए 3 कार्बन कंपाउंड है, 1 कार्बन डाइऑक्साइड है, हम 3 कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, ठीक है, ताकि हमें 3 कार्बन मिल जाए एक टाइम में। सही है, क्योंकि आप देखिए हमने ग्लूकोज जो बनाना है उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 5 कार्बन कंपाउंड आ गया हमारे पास, 1 2 3 4 5। राइबोलूस बिसफॉस्फेट, दिस इज द बिसफॉस्फेट का मतलब है कि इसके साथ 2 फॉस्फेट अटैच है, एक फॉस्फेट यहाँ, दूसरा फॉस्फेट यहाँ। अगर राइबोलूस फॉस्फेट होता तो इसके सिर्फ एक साइड पे अटैच होता फॉस्फेट, ठीक है। फ्रॉम द नेम यू कैन रिमेंबर द टर्म्स। Now this 5 carbon compound is making a bond with 1 carbon compound. अब ये 3 5 कार्बन है तो ये 3 कार्बन से ही ज्वाइन करेंगे। जैसे you can see here, I hope कि आपको ये टॉपिक समझ आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 2 3 4 5, ठीक है। Let me draw a line here first. ये हमारे पास एक है राइबोलोस, सेकंड राइबोलोस बाइफॉस्फेट, थर्ड राइबोलोस बिसफॉस्फेट। अब आप देखिए राइबोलोस बिसफॉस्फेट में 5 कार्बन हैं। आर यू गाइस गेटिंग मी? मैं आपको क्या समझा रही हूँ? फर्स्ट स्टेप पढ़ रहे हैं हम कार्बन फिक्सेशन। 3 राइबोलोस बिसफॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5, सही है। सेकंड एंड ये 2 3 4 5, यहाँ पे 3 लिखा है ना, तो हमने 3 बिसफॉस्फेट बना लिए राइबोलोस बिसफॉस्फेट। अब हमारे पास 3 कार्बन डाइऑक्साइड है। 3 कार्बन डाइऑक्साइड हमें ऑक्सीजन को अभी हम डील नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ कार्बन को डील कर रहे हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास एक और कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन, दूसरा, तीसरा। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन फिक्स हो रहा है। अब होगा क्या कि जो 5 कार्बन कंपाउंड है ये इस वाले कार्बन से बॉन्ड बना लेगा। ये बन गया 6 कार्बन कंपाउंड, बन गया, ठीक है। अब 6 कार्बन कंपाउंड बन गए। 6 कार्बन कंपाउंड इज वेरी स्टेबल, ठीक है। एंजाइम जो यूज हो रहा है उसका नाम है रिबिस्को, क्योंकि एंजाइम जो है वो रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं, स्पीड अप करते हैं, ठीक है। इस रिएक्शन में हमारे पास 6 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। और जो 6 कार्बन कंपाउंड है इट इज वेरी अनस्टेबल, राइट आफ्टर फॉर्मेशन इट विल ब्रेक डाउन। ये ब्रेक डाउन इसकी ऐसे होगी कि यहाँ पे आप देखें कि ये जो 6 कार्बन कंपाउंड बना है ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, 1, ये भी यहाँ से, और ये भी यहाँ, 3 कार्बन साइड पे आ गए हैं। अब राइबोलोस बिसफॉस्फेट में हुआ ये कि दोनों तरफ फॉस्फेट अटैच था। अब यहाँ पर फॉस्फेट अटैच है इसकी, दिस इज फॉस्फेट and this is phosphate. Let me draw phosphate in the form of this heart. This is phosphate, phosphate and phosphate, ठीक है। You can check it from your textbook. Open your page number chapter number 4, last reaction. Page number 101, no 102. कार्बन साइकिल का कार्बन फिक्सेशन फॉर रिबिस्को एंजाइम है। CO2 एक्सेप्टर जो मॉलिक्यूल है वो एक्सेप्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन को, इज नोन एज राइबोलोस बिसफॉस्फेट,
ठीक है। अब क्या हुआ है कि 6 कार्बन कंपाउंड जो ब्रेक करेगा 2 मॉलिक्यूल्स बना देंगे 3 फॉस्फोग्लिसरेट के। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स बन गए 3 फॉस्फोग्लिसरेट के। यहाँ हर मॉलिक्यूल की एक साइड पे एक एक फॉस्फेट अटैच है। अब आप देखें कि यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स बने नजर आ रहे हैं आपको, 6 मॉलिक्यूल, और हर मॉलिक्यूल के साथ, लेट मी ड्रॉ इट अगेन, कि हमारे पास अब 6 मॉलिक्यूल्स बने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, अब आप देखें यहाँ पर कि जिस तरह 6 कार्बन कंपाउंड बना था, वो ब्रेक हुआ, हमारे पास 3 थे, तो ये 6 3 कार्बन बनेंगे ना, टोटल 6 कार्बन कंपाउंड बने थे हमारे पास। अब वो हर कंपाउंड दो दो में डिवाइड हो गया, ऑब्वियसली 6 बन गए। अब हमारे पास यहाँ पे देखें 6 3 कार्बन कंपाउंड बन रहे हैं। अब ये जो 3 कार्बन कंपाउंड है इसको हम कहते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरेट, लेकिन अभी ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट नहीं है। रीजन कोई बता सकता है मुझे? नेम से पढ़े, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, ग्लिसरेट के 3 कार्बन नंबर पे एक फॉस्फेट अटैच है। लॉजिक बन रही है, 1 2 3 एक फॉस्फेट अटैच, 1 2 3 एक फॉस्फेट, 1 2 3 एक, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, अब समझ आ रही है 6 3 फॉस्फोग्लिसरेट का मतलब क्या है? 6 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन गए, इसको हम 3 PGA भी कहते हैं। ऑलराइट, अब ये जो 3 कार्बन कंपाउंड है, ये हमारे पास कार्बन ऑफ इनऑर्गेनिक CO2 कम्स द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड RUBP। RUBP वाज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, फॉस्फेट अटैच थे इसके साथ, 5 कार्बन कंपाउंड था। अब ये इसका पार्ट बन गया, हमने इसको डिवाइड भी कर लिया, 3 PGA बन गया, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब यहाँ पे देखिए आप, पेज 103 पे टर्म लिखी हुई है कि केल्विन साइकिल को C3 पाथवे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो पहला इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है हमारे पास, द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है जो हमारे पास, वो 3 कार्बन है। दैट इज द रीजन वाई हम इसको कहते हैं कि ये C3 पाथवे है। अगर आप लोग देखेंगे पहला प्रोडक्ट जो था वो हमारे पास 6 कार्बन कंपाउंड था, यही था ना, 1 2 3 4 5 6 कार्बन कंपाउंड, लेकिन ये अनस्टेबल था, राइट आफ्टर फॉर्मेशन ये ब्रेक हो गया था। तो यहाँ पे पेज नंबर 103 पे डेफिनेशन देखें, द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इन केल्विन साइकिल इज 3 कार्बन कंपाउंड which is 3 PGA, 3 phosphoglyceric acid या 3 phosphoglycerate, एक ही बात है। That is the reason why हम इसको क्या कहते हैं, C3 pathway। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत दफा आता है पेपर में, ठीक है। Why Calvin cycle is known as C3 pathway? Because the first stable product is 3 carbon. That is the reason why it is known as C3 pathway. अब इसके जैसे ही हमारे पास 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, एक ही बात है, ये बना, तो फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गया, ठीक है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द सेकंड फेज व्हिच इज रिडक्शन। समझ आ रही है फर्स्ट ईयर? डार्क रिएक्शंस की, केल्विन साइकिल की समझ आ रही है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत दफा बोर्ड में रिपीट हुआ है, सो आई हैव टू मेक श्योर कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो इस टॉपिक पे। समरीन, आयशा, ओके, कुरतुलैन एंड उम्मे लैला। कुरतुलैन मलिक, शी इज नॉट इन द क्लास। ओके, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट फेज। नेक्स्ट फेज में जो है जिसका नाम है रिडक्शन फेज, इसके अंदर हमने क्या करना है? रिडक्शन का मतलब है कि हमने जो है अटैच करनी है हाइड्रोजन या किसी तरह NADPH को रिड्यूस करना है, को ऑक्सीडाइज करना है और रिडक्शन करनी है अपने मॉलिक्यूल की। तो फर्स्ट फेज तो ये कि हमारे पास अटैच एक फॉस्फेट अटैच है। एट फर्स्ट पॉइंट होगा क्या रिडक्शन फेज में, कि जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट था उसमें, उसके अंदर हम उसको हम 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बना देंगे। 3 PGA को 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बना देंगे। वो कैसे? कार्बन नंबर 1 पे भी फॉस्फेट अटैच करेंगे। फॉस्फेट कहाँ से आएगा? ATP को ब्रेक डाउन करेंगे और हमारे पास क्या बनेगा? ADP प्लस, लेट मी टेक इट फर्स्ट, 8 ADP, और हमारे पास 6 फॉस्फेट भी रिलीज होंगे। let me make it yellow red। 6 फॉस्फेट रिलीज होंगे। फॉस्फेट को हम डिनोट करते हैं PI से, फॉस्फेट ग्रुप। अब ये जो 6 रिलीज हुए हैं 6 फॉस्फेट ग्रुप्स, इनको कहाँ अटैच करना है? 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बनाना है ना, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। जिस तरह ये था 1,3 राइबोलूस बिस फॉस्फेट, तो इस तरह कार्बन 1 और कार्बन 3 पे फॉस्फेट अटैच करना है। वो कैसे करेंगे? जो ATP की ब्रेकडाउन की, फॉस्फेट रिलीज हुआ, इसी फॉस्फेट को हम कार्बन नंबर 1 से भी अटैच कर देंगे। नजर आ रहा है? अब ये क्या बन गया है? 3 PGA से 1,3 PGA या फिर 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट।
ठीक है, इसको हम 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट कहते हैं। अब हमारे पास जो है सेकंड फेज क्या होगा, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट का इसको अब हम रिड्यूस करेंगे, यूज करेंगे हम NADH NADPH को। NADPH कहाँ से आया और ADP कहाँ से आया था? ADP वहीं से लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस से आया, NADPH भी लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस से आया। फाइनली ग्लिसरेडियल 3 फॉस्फेट प्रोड्यूस होगा और इस रिडक्शन प्रोसेस में क्या होगा कि फॉस्फेट ग्रुप 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से उसको हम रिलीज करवा देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखें NADPH को हमने कन्वर्ट किया NADP में, और फॉस्फेट कहाँ, अब ये जो हमने अटैच किए थे 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के ऊपर कार्बन 1 पे फॉस्फेट, इनको हम रिलीज करवा देंगे। ठीक है, हम इनको इरेज कर देते हैं। ओके, अब ये हमारे पास जो फॉस्फेट थे ये रिमूव हो गए कार्बन नंबर 1 से, 6 फॉस्फेट आ गए, यहाँ पे आप नजर आ रहे हैं 6 फॉस्फेट, और NADPH से NADP बना दिया। जो हाइड्रोजन थे वो हमने अटैच कर दिए किसके साथ? बिस फॉस्फोग्लिसरेट के साथ। इसकी रिडक्शन हमने की। ठीक है, जब हमने इसकी रिडक्शन की है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है उसका नाम है ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। Are you guys noticing? ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब यहाँ पे 6 क्यों लिखे हैं? यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं 6 ही है, ये इनका नंबर चेंज नहीं हुआ। 6,3 ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनेंगे। फॉस्फेट पहले अटैच किया ATP से लेके, फिर फॉस्फेट दे दिया NADPH को, और ये देखें ना एरो बाहर आ रहा है, फॉस्फेट बाहर आ रहे हैं, फॉस्फेट रिलीज हो गया और हाइड्रोजन ऐड हो गए, और वो प्रोडक्ट 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से क्या बन गया? ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जिसका नाम है G3P, ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। दैट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। ठीक है, ये भी 3 कार्बन प्रोडक्ट है, और विद द प्रोडक्शन ऑफ ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हमारा नियर टू कंप्लीशन है जनरेशन रिडक्शन फेज। अब क्या होगा कि ये हमारे पास जो 1 मॉलिक्यूल जो होगा रिलीज हो जाएगा फ्रॉम द साइकिल, विद द रेस्ट ऑफ 5 मॉलिक्यूल्स आर यूज्ड टू रीजनरेट CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स। अब आप देखें ये G3P हमारे पास है, इन 6 में से एक जो है हमारे पास, लेट मी ड्रॉ इट दैट, ये जो एक है ये रिलीज हो जाएगा। ठीक है, आउटपुट इस G3P से हम अपना ग्लूकोज फॉर्मेशन करेंगे, प्लांट जो है वो ग्लूकोज फॉर्मेशन करेगा। बाकी कितने रह गए? काउंट करें कितने हमारे पास रह गए हैं। ये 1 2 3 4 एंड 5, ये जो 5 3 कार्बन कंपाउंड्स हैं, ये क्या करेंगे? ये 5 G3P ये यहाँ पे आ गए, और G3P के साथ वापस एक और ATP यूज हुआ और ADP बना। ADP बनने के साथ हमारे पास क्या रिलीज हुआ? हमारे पास यहाँ पर एक फॉस्फेट रिलीज हुआ। जैसे हमेशा ADP से अगर ATP से अगर ADP बनता है, एक फॉस्फेट रिलीज होता है, तो 3 ATP यूज हुए तो 3 फॉस्फेट रिलीज हुए हैं। 3 फॉस्फेट हमारे पास जो रिलीज हुए हैं ये जाके ऐड हो गए हैं हमारे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ रेबुलस बाय फॉस्फेट से, क्योंकि रेबुलस फॉस्फेट नहीं है, बिस फॉस्फेट है। ठीक है, सीरीज ऑफ रिएक्शन होंगे जिसके अंदर जो है ये 5 G3P जो है अपने साथ एक एक फॉस्फेट अटैच करेंगे। ठीक है, एक एक फॉस्फेट अटैच करने के बाद जो मॉडिफिकेशन जो भी होगी वो RUBP रीजनरेट कर लेंगे 5 कार्बन कंपाउंड। समझ आ रही है? So right after the release of one G3P and 5 G3P हमारे पास रिडक्शन फेज कंप्लीट हो गया। अब रीजनरेशन फेज में क्या होता है कि 5 G3P सीरीज ऑफ रिएक्शन होते हैं, इनकी हमें डिटेल नहीं पढ़नी, और ये क्या रिजनरेट करवा लेते हैं हमारे पास? अपना RUBP जो कि कार्बन एक्सेप्टर है। ठीक है, so now look at पेज नंबर 104 कि किस तरह हमारे पास 5 मॉलिक्यूल ऑफ G3P या फिर PGAL फ्रॉम प्रीवियस फेज वो जनरेट करते हैं RUBP को। 5 मॉलिक्यूल्स के पास हर किसी में 5 मॉलिक्यूल्स में से हर किसी के पास कितने कार्बन है? 3 कार्बन। यू कैन सी हियर 3 कार्बन है। तो ये 3 कार्बन हमारे पास जो है बेसिकली बहुत सारे रिएक्शन करेंगे जो कि डायग्राम में गिवन नहीं है। इनके अंदर हर कार्बन जो है राइबोलूस फॉस्फेट बनाएगा। ईच 5 कार्बन एटम आर प्रोड्यूस्ड वेयर दिस RUP रिएक्ट विद 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। फॉस्फेट ग्रुप जो है वो ATP देगा हमें RUP, अल्टीमेटली RUP जो है कन्वर्ट हो जाएगा राइबोलूस बिस फॉस्फेट पे। ठीक है, राइबोलूस फॉस्फेट के साथ एक और फॉस्फेट अटैच हो जाएगा तो राइबोलूस बिस फॉस्फेट बन जाएगा। और द होल प्रोसेस ऑफ केल्विन साइकिल इंडिकेट करता है कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड and 6 molecules of NADPH reducing power, 6 molecules of। अब हमने यहाँ पे नोट करें आप लोग कि हमारे पास यूज क्या क्या हुआ है। टेक इट कि हमने यूज किया है 3 कार्बन डाइऑक्साइड,
6 NADPH यूज किए हैं जो कि रिड्यूसिंग पावर दे रहे हैं. 9 ATP मॉलिक्यूल्स है. कैन यू काउंट 6 फ्रॉम हियर एंड 6 हियर. 9 ATP यूज हुए, 6 NADPH यूज हुए हमारे पास, और हमारे पास एक G3P प्रोड्यूस हुआ है टोटल, ये वाला. और या G3P या PGAL एक ही चीज है, इसका सेम नेम है. और in order to produce glucose molecule 2 G3P are required, the overall process cycle can be written in the हम इसकी इक्वेशन भी बनाएंगे जिसे अभी हमने बनाई है. अब देखिए एक G3P के पास 3 कार्बन है. अगर हमने इस G3P से ग्लूकोज बनाना है तो हमें कितने G3P चाहिए होंगे? ऑब्वियसली कितने चाहिए होंगे? कैन यू गाइस टेल मी? एक ग्लूकोज बनाने के लिए कौन बताएगा? जल्दी से बता दे. समरीन, क्रोतुलैन. एक G3P के पास 3 कार्बन है. ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6. जी, तो हमें 3 कार्बन के कितने मॉलिक्यूल चाहिए होंगे? G3P कितने चाहिए होंगे कि हमें 6 कार्बन कंपाउंड मिले? 2. ऐसा ही है. हाँ, अब देखें 2 G3P कंबाइन हुए, इन्होंने हमारे पास एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना लिया C6H12O6. समझ आया? डार्क रिएक्शन कंप्लीट. फर्स्ट फेज कार्बन फिक्सेशन, देन रिडक्शन सेकंड फेज, देन CO2 और RUBP. किस तरह हमने जो CO2 का एक्सेप्टर है RUBP उसको रीजनरेट किया है. इसकी हमें डिटेल नहीं पढ़नी कि क्या है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि रीजनरेशन में किस तरह एक G3P रिलीज हो जाता है. और कंप्लीट प्रोसेस के लिए हमें कितने मॉलिक्यूल्स चाहिए G3P के? 2. अच्छा, अगर हम रिएक्शन बनाएं तो हमारे पास क्या रिएक्शन होगा? 3CO2 रिएक्शन बनाते हैं, यहीं से बना लेते हैं इंस्टेंट. एक तो हमें चाहिए, कौन सा कलर यूज करें? पर्पल. रिएक्टेंट्स में हमारे पास एक हमें CO2 चाहिए होगा, ऐसा ही है. एक CO2 प्लस 9 ATP, 6 यहाँ से 3 यहाँ से 9 ATP. और NADPH कितने चाहिए होंगे? कहाँ पे NADPH? 6 चाहिए होंगे. यस, 6 NADPH. ये हमारे पास क्या हो गया रिएक्टेंट. पेज नंबर 104 पे देखें. हाँ, रिएक्शन जो बना हुआ है यही लिखा है ना, 3 कार्बन डाइऑक्साइड, 9 ATP, 6 NADPH. अब हम प्रोडक्ट्स देखते हैं बगैर अपनी बुक को देखे. प्रोडक्ट में हमारे पास क्या क्या है? एक G3P, ठीक है, और हमारे पास क्या क्या बना है? ADP बने हैं हमारे पास. अगर 9 ATP यूज हुए तो 9 ही ADP बने होंगे, ऐसे ही है. कलर चेंज कर लेते हैं. 6 ADP इधर और 3 इधर. 9 ADP, 9 ही फॉस्फेट. हमेशा हमारे फॉस्फेट भी तो रिलीज हुए थे ना, जितने ADP बनते हैं उतने ही फॉस्फेट रिलीज होते हैं. 9 ADP और 9 फॉस्फेट, एक G3P और 3 वाटर मॉलिक्यूल्स, जो कि हमने अभी यहाँ पे शो नहीं हुए हमारी डायग्राम के अंदर, लेकिन 9 वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हुए हैं. वो कहाँ से रिलीज हुए हैं? जब आपको याद है हमने अभी रिड्यूसिंग पावर यूज की थी तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हुआ था. सो दैट इज ऑल अबाउट our dark reaction और Calvin cycle. I hope आपको समझ आई हुई है. Any confusion up till now? ओके. अच्छा, अब यहाँ ओवरव्यू देखें कि कार्बन फिक्सेशन किस तरह. कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल ने 6 कार्बन कंपाउंड बनाया जो स्प्लिट हो गया 2-3 कार्बन कंपाउंड में. 3PGA में रिडक्शन फेज में क्या हुआ कि ATP यूज हुआ, G3P बना. G3P में एक कार्बन चला गया, दूसरा जो उससे ग्लूकोज बन गई. इसके बाद हमने रीजनरेशन कर लिया, RUBP अगेन बन गई है हमारे पास. ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हम नहीं देखते. अब हम एक वीडियो देख लें ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए जल्दी से. Calvin cycle. The process of Calvin cycle takes place inside the stroma of chlorophyll. It is also known as light independent phase. The solar energy is composed of various colors. The Calvin cycle consists of a series of reactions that reduce carbon dioxide to produce the carbohydrate glyceraldehydes 3-phosphate. The cycle consists of 3 steps: carbon fixation, reduction, and regeneration. The first step is carbon fixation. In this step, carbon dioxide is attached to ribulose 1,5-biphosphate, resulting in a 6-carbon molecule that splits into 2
3 carbon molecules. The second step is sequence of reactions using electrons from NADPH and some of the ATP to reduce carbon dioxide. ये हमें स्टेप वाइज दिखा रहा है कि एक राइबोसिल बाइफॉस्फेट मिलके किस तरह 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा. हमने तो इकट्ठा ही डिस्कस कर In the लिया ना. third step, ribulose 1,5 biphosphate is regenerated. For every steps of the cycle, 5 molecules of glyceraldehydes 3-phosphate are used to reform 3 molecules of ribulose 1,5 biphosphate. The remaining glyceraldehyde 3-phosphate is then used to make glucose.